Good morning class. Today we are going to start new chapter 9, that is coordination compounds. Students, talking about coordination compound, basically coordination compounds are the compounds in which the central atom is linked to a number of ions, or you can say neutral molecules, by coordinate bond. Okay, that is by donation of lone pair of electron by these ions or neutral molecules to the central atom. Students, in this chapter basically we have to discuss about ligands, about coordination number, about the magnetic properties, shapes, etc. And we have also discussed about the nomenclature of coordination compound. Okay. Previously there were one more topic, that is isomerism, which is reduced because of COVID-19, and we have to discuss about the importance of coordination compound. So students, as we have discussed what are coordination compound, basically we have seen that they are the compound in which central metal atom is linked to a number of ions or molecules. Okay, for example, students, suppose that we are talking about NiCO4. Okay, so this NiCO4, here nickel is the metal, so as we are saying the metal atom, it is linked to ion or molecules, so it is linked to CO4, okay, 4CO molecule via a coordinate bond. This is called as coordination compound. Now students, talking about what is coordination chemistry, so the branch of inorganic chemistry which deals with the study of coordination compound is called as coordination chemistry. Now students, let us see what type of complexes are there, or how many type of complexes are there. So students, as you can see here, type of complexes, that is there are 3 type of complexes. One will be named as cationic complexes, second will be named as anionic complexes, and the last will be named as neutral complexes. So students, here you can see a complex in which the complex ion carries a net positive charge, जिसमें complex ion पे net positive charge होगा वो cationic होगा, जहाँ पे complex ion पे negative charge होगा वो anionic complex होगा, और जहाँ पे complex ion पे कोई भी charge नहीं होगा वो neutral complex होगा. स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको समझना है कि complex क्या है. तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो इनको हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं एज दोज कंपाउंड विच कंटेन्स कॉम्प्लेक्स आयंस. ओके, एंड दैट इज़ वाई द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था NiCO4, तो यहाँ आप देख रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कुछ कंपाउंड्स की, जैसे आप देख पा रहे हैं AgCN2 माइनस, यहाँ आप माइनस चार्ज देख रहे हैं, तो ये आपके एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे. और कुछ ऐसे स्पीशीज़ होंगे जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं CONH3 ये आपके क्या हो गए, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, दैट इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हम एक और टर्म आज समझेंगे, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, डबल सॉल्ट आप अर्लियर क्लासेस के में भी इसके बारे में स्टडी किए रहते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी एक बार और समझिएगा. अगर हम बात करते हैं डबल सॉल्ट की, जैसा कि आपने मोहर्स सॉल्ट देखा, जैसा कि आपने पोटैश एलम देखा, पोटैश एलम दैट इज K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, और मोहर सॉल्ट जो कि है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O. सो स्टूडेंट्स, जो डबल सॉल्ट होते हैं वो 2 सिंपल सॉल्ट्स को इक्वी मोलर प्रोपोर्शन में कंटेन करते हैं, जबकि अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो ये सिंपल सॉल्ट होते हैं
जिससे जो है हम लोग फॉर्म कर सकते हैं या नहीं भी बना सकते हैं इक्विलिब्रियम प्रोपोर्शन में, मतलब कि जो सिंपल सॉल्ट होते हैं फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड मे और मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम प्रोपोर्शन। ठीक है, जिन सॉल्ट से ये बने होते हैं ये इक्वल प्रोपोर्शन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़ स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं डबल सॉल्ट की, तो ये केवल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में ये डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में। और वहीं पे अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स आयंस की या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो ये सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में भी पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर सॉल्यूशन की भी बात करें तो कॉम्प्लेक्स आयन जो होते हैं वो डिसोशिएट नहीं होते हैं आयंस में। ओके स्टूडेंट्स, डबल सॉल्ट की अगर बात की जाए तो ये आयनिक कंपाउंड होते हैं और कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंटेन नहीं करते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो ये आयनिक भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम कहते हैं आयनिक हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की डबल सॉल्ट की, तो वो सेम होती है जो उसके कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो ये डिफ़र करती है इनकी प्रॉपर्टीज़ उनके कंस्टिट्यूएंट से। अब बात की जाए अगर डबल सॉल्ट की, तो जो मेटल आयन होते हैं वो शो करते हैं नॉर्मल वैलेंसीज। और अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो मेटल आयन जो होते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं दो टाइप की वैलेंसीज से। ठीक है, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। प्राइमरी वैलेंसी होती है इनमें और सेकेंडरी वैलेंसी होती है। देन स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं डबल सॉल्ट की, तो ये जो होते हैं डबल सॉल्ट, इसको कह सकते हैं कि इनकी आइडेंटिटी जो है सॉल्यूशन में होती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल्स हैं, आयंस है जो कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में है, तो ये आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। तो डबल सॉल्ट आइडेंटिटी रिटेन नहीं करता है, लूज़ कर देता है अपनी आइडेंटिटी, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो आइडेंटिटी को क्या करता है, रिटेन करता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू क्लास।